ابھی آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب علامہ رب نواز عسکری صاحب اور ان کے بعد قاری اردو صاحب جا کر غلام جعفر رضا گاڑکوٹ خطاب کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلو علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی وکتاب الہادی مولاتہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہود وعلم المعصور وکتاب المستور والنور الساطع والسیاہ اللامع مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المحسوبین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں سیون والے کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ قلندر شہنشاہ شہید لال شہباز آپ تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کا پرخلوص اہتمام نظر و نیاز بوزلہ سرکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قلندر سرکار جو علی کا پوتا ہے آپ کے جشن میں تشریف آوری قبول و منظور فرمائے۔ میرے نہایت واجب الاحترام محترم زوار حاجی شکل صاحب نے مجھے موضوع دیا ہے کلندر، تو میں انشاءاللہ کلندر ہی پڑھوں گا اور اسی کی نسبت سے میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ کے ولی پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں کیسے بتاؤں گا کلندر کہاں سے چلے، کون ہے، ڈھائی کلندر کیوں ہیں، شام کلندر کیوں ہے، صبح کلندر کیوں نہیں، دوپہر کلندر کیوں نہیں، یہ ہسٹری ہے پوری، خشک موضوع ہے لیکن سنیے۔ سب سے پہلے فقیہ کے تکیے پر جس نے علم عباس لہرایا وہ اور کوئی نہیں، کلندر کا باپ سید ابراہیم جوابی ہے۔ میں جتنی کتابوں کے حوالے کہو گے انشاءاللہ میرے پاس موجود ہے، ذرا سننا تھا۔ سب سے پہلے فقیری ڈیرے پر فقیہ کے تکیے پر جس نے علم عباس لہرایا وہ اور کوئی نہیں، کلندر کا باپ سید ابراہیم جوابی ہے۔ اور یاد رکھنا ملکوں کے پرچم ہوتے ہیں، اسلام کا علم ہوتا ہے۔ ملکوں کے پرچم ہوتے ہیں، اسلام کا علم رائت ہوتا ہے۔ بخاری سے لے کے ترمذی تک سب گواہ ہے۔ اور سید دیکھیے پاکستان کا پرچم پاکستان میں ہے، ہندوستان میں نہیں لہرا رہا۔ ہندوستان کا پرچم سعودی عرب میں نہیں لہرا رہا، سعودی عرب کا پرچم بنگلہ دیش میں نہیں لہرا رہا، بنگلہ دیش کا پرچم نیپال میں نہیں لہرا رہا، اور نیپال کا پرچم مسقط میں نہیں لہرا رہا۔ مسقط کا پرچم جو ہے وہ بڑی توجہ ایجپٹ مصر میں نہیں لہرا رہا۔ کائنات میں واحد علم عباس ہے جو ہندوستان میں بھی لہرا رہا ہے، پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے، نیپال
मुल्क अपना परचम रखता है, लेकिन दूसरे मुल्क में उसे फ्लक्चुएशंस करने की नोट परमिशन कोई इजाजत नहीं। कोई परचम होगा भी तो अपने मुल्क का परचम दूसरे परचमों से बुलंद है। ये बात ध्यान में रखना। मैं तो जुमला बदलूंगा। कायनात की हुकूमतें जिसके अलम के बरेरे की छाँव में चल रही हों उसे अब्बास कहते हैं। और शबीर भाई, ये सैयद इब्राहिम जवाबी ये कलंदर के बाप हैं। जवाबी फारसी जुबान का लफ्ज है, इसका माना है जवाब का आना। सलाम करते थे मौला हुसैन को, सामने से जवाब आता था। इसलिए शाहजी हाजी साहब, इसलिए कहा गया जवाबी। फारसी में जवाबी के माने बहती हुई नहर के हैं। ये भी रवायत है क्योंकि कलंदर के बाप ने अपना मकान दरिया के किनारे बनाया था ताकि गुस्ल में आसानी हो, इसलिए जवाबी कहा गया बहती हुई नहर के किनारे बसेरा करने वाला। यहाँ तक आप बात समझ गए कि वो हस्ती है। मौला हुसैन के रोजे पर गए, इमाम साहब ने फरमाया सैयद इब्राहिम हम तुझे एक शहबाज अता करते हैं, जब पर खोलेगा तो खुशबू जारी होगी। मौजू ज़हन में रखा, मुझे 2 घंटे भी पढ़ाएंगे तो कलंदर ही पढ़ूंगा। मैं मौजू से हटने का आदि नहीं, क्योंकि मुझे बानी ने कहा है इतनी मेहनत है तो दाएं बाएं वो जाए जिसके पास कोई मवाद ना हो, जिसे कलंदर के मुकद्दस रोजे की धूल के सदके में मिला हो, उसे परवाह नहीं होती। हम अपने आप पे सैयद नाज नहीं करते, बाबे मदीना तो दिल पे नाज करते हैं तो उनके घर के भिखारी है। कहा हम तुम्हें एक बेटा देते हैं, एक बेटा देते हैं, पर खोलेगा तो फैलेगी खुशबू। जवाब आया, इधर से कलंदर ने बाप की जुल्म में कहा बाबा जान अक्त कीजिए, मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। अक्त कीजिए, मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। अक्त कीजिए, मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। कादम कह रहा क्या समझेगी दुनिया, आले मोहम्मद पैदा नहीं होते कि नाज़िल होते हैं। बाप की जुल्म में कह रहे हैं बाबा अक्त कीजिए, मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। सैयद इब्राहिम जवाबी कहते कलंदर तू जन्नत में है, जन्नत में रहे, दुनिया से बेहतर है। मुस्कुरा के कहा बाबा जन्नत मिलती है अमल करने के बाद जज़ा के सिले में। मैं दुनिया में आके पहले अमल करके बताऊंगा, फिर जन्नत में जाऊंगा। क़यामत तक के लिए कलंदर ने एक फैसला कर दिया, अल्लाह का वली जन्नत का मोहताज नहीं होता, जन्नत अल्लाह के वली की मुश्ताक होती है। जन्नतों के लिए इबादत नहीं करता, वरना मुझे कोई दिखा दे किस मौलवी के पीछे कलंदर ने नमाज पढ़ी है। कोई है कि रवायत चौधरी नौकर हुसैन साहब, मैं सवाल छोड़ो, मुझे दिखा दो किस पेश नमाज के पीछे कलंदर नमाज पढ़ा करता था। नहीं मिलेगा। राबिया बसरी, वो अली कलंदर आपको मिलेगा ही नहीं। नमाज वो पढ़ते थे, उसमें भी याद है क्या कहा, अक्त कीजिए दुनिया में आना चाहते हैं, बाप की जुल्म में है, बाप की जुल्म में कलाम कर रहा है। याद आया कुछ मरियम का वाकया, जब इस्मत पे दाग लगा था और जनाब ईसा ने कहा था, मरियम ने इशारा किया तो ईसा कहते हैं वो अशारत अलैहि कानु कैफा नुकल्लिमु मन काना बिल महद सबिया। बीबी मरियम ने इशारा किया और कहा कहवारे में जो पड़ा है ईसा, उससे पूछ लो। ईसा ने कहा मैं ईसा हूँ, अल्लाह का अब्द हूँ, नबी हूँ, अंजील लेकर आया हूँ। तो समझो कलंदर और ईसा में फर्क क्या है। जो कहवारे में रहकर कलाम करे उसे ईसा कहते हैं, जो बाप की जुल्म में रह के बातें करे तो कलंदर उसे वो होता है कलंदर। अच्छा अब तो हुआ 40 दिन तक कलंदर के बाप हुजरा अरूसी में नहीं गए। दोस्तों किताब कर मखलूक मजमे को मदन निगाह। किसी ने पूछा 40 रातें होगी, कह क्यों नहीं? जुमला सुना, कहा मैं रास्ते में से गुजर रहा था, मुझे चने का एक दाना मिला। कलंदर का बाप कह रहा है मैंने वो दाना नेमत खुदाबंदी समझ के उठाया और खा लिया। बाद में ख्याल आया मैंने दाने के मालिक से तो इजाजत ही नहीं ली, तो मैंने खा लिया है। कहते
40 रातें हो गई हैं, इसलिए हुजरा रूप से मैं नहीं गया। मुझे गवारा नहीं है कलंदर की रगों में दौड़ने वाले खून में इस गंदम के दाने का भी असर हो तो बगैर पूछे खाया है, बगैर पूछे खाया है। और ये वो कलंदर है, मेरा सुनना खुदा की कसम, जिनका शजरा क्या है और हसब नसब क्या है। इस कलंदर का नाम था शाह हुसैन। ये मरवान जो रखा गया उसके लिए बताता हूँ। बाप शाह हुसैन नाम है, शजरा शाह हुसैन बिन सैयद इब्राहिम जवाबी बिन सैयद सुल्तान बिन सैयद नूर बिन सैयद महमूद बिन सैयद हादी बिन सैयद तुगलक बिन सैयद नुसरत बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद इस्माइल सानी बिन सैयद अकब बिन सैयद असद बिन सैयद नुसरत बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इमाम जाफर सादिक बिन सैयद इमाम बाकर बिन सैयद साहिब बिन सैयद हुसैन बिन सैयद हुसैन बिन सैयद अली बेटा है इमरान का, और इमरान बेटे अब्दुल मुतलिब के, अब्दुल मुतलिब हाशिम के, हाशिम अब्दुल मुनाफ के, शजरा आगे आदम तक है। क्या पता चल गया कि कलंदर हसबन नसबन हसनी भी हुसैनी भी पंजतरी। मैं इस नारे का जवाब भी दूंगा। ये जो सखी लाल कलंदर ये नारा किसने लगाया था? ये जो आप लगाते हैं नारा, ये भी कलंदर एक लफ्ज है, हर 5 है। काफ लाम नून दाल रे। काफ से कनार, नून से नुदरत आजी इनकसारी, लाम अल्लाह से लू लगा लेना दुनिया को तर करना, दाल दलेरी, रे रियाजत। फिर फुकरान डॉक्टर होमल अस्फानी अंसारी, उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया में लिखा कलंदर इसलिए कहा गया क्योंकि इनके कलब के अंदर पंजतन का इल्म था। कलंदर हुए 12 वर्ष के। मैं यकीन करे समझ नहीं आ रही कहाँ से छोड़ूं साहब, कहाँ से पढ़ूं, टाइम ही मुख्तर है, मैं किसी का हक भी नहीं सब करना चाहता। 12 वर्ष का ज़ाहिरी सिर था, माँ दुनिया से चली गई। कलंदर धमाल, अच्छा धमाल किसे कहते हैं? राज को भी कहते हैं। थम आल, थम आल, थम को अलहदा पढ़ो, आल को अलहदा। जिस तरह सलाम अल्लाह आल यासीन आल, वहाँ पे खड़ी जबर मिलेगी कुरान में। धम आल, ये एक कदम रखते थे दूसरा उठाते थे, दायां उठाते बायां रखते, जमीन के नीचे कांटे और नोकीले पत्थर कलंदर बिछा देते, गले में कौक होता, हाथों में हथकड़ियां होती, पाँव में बेड़ियां पहनते, कमर में लंगर, सजदे सज्जाद के गम को, और जो कांटे बिछाए होते पाक सैन सकीना की सुन्नत में, क्योंकि बीबी फरमाया कि 12 मील हमें पैदल चलाया गया। ये कलंदर उनकी मोहब्बत में उनके गम को याद करके रस करते और तबर्रा करते थे कातलाने हुसैन पे। 12 वर्ष की एज थी, 12 वर्ष की माँ दुनिया से चली गई। मरवान में कलंदर पाक बाहर पहाड़ियों में चले गए, पहाड़ियों में जाकर नोकीले पत्थर झोली में इकट्ठे किए, कांटे इकट्ठे किए, उन्हें जमीन पर बिछा दिया। ढोल जी ने कहा ढोल बजाना शुरू करो, ढोल जी ने ढोल बजाना शुरू किया। कलंदर ने दायां पाँव उठाया तो बायां रखा, बायां उठाया तो दायां रखा, और एक जुमला कहा, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा है मुर्तजा अली हस्तम, मैं अली मुर्तजा का बंदा हूँ। लगाओ कलंदर पे कुफर का फतवा, दुनिया कहती है हम अली के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। कलंदर कह रहा है मैं अली का बंदा हूँ। मौलवी से पहले पूछो बंदे की तारीफ क्या है। बंदा फारसी जुबान का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है, किस जुबान का लफ्ज़ है? इन्हें यही पता नहीं है बंदा किसे कहते हैं, बंदे की तारीफ क्या है। सुभान अल्लाह जी अब्द हो, अब्द को ले गया, किसे कहते हैं अब बताओ। अना अब्द में अबीद मोहम्मद, अली फरमाते हैं मोहम्मद के नौकरों में से। तर्जुमा गलत है, अली नौकर नहीं है, अली नफ्स मोहम्मद है। ढोल जी ने ढोल बजाया सही, कलंदर ने पाँव रखे, खुदा की कसम अचानक जमीन फटी 14 साल, और कलंदर जमीन के अंदर गायब हो गए। ढोल जी बेहोश हो गया। ढोल जी कहते थोड़ी देर के बाद मैं होश में आया तो मैंने देखा दोबारा कलंदर जमीन से बाहर बरामद हो गए। और फिर कहा
हैदरम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हल्तम। पाँव के नीचे से खून बह रहा था, फना फिल्ला हो चुके थे, वजन तारी था, गर्दन झुकी हुई थी, आंखें बंद थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, रुखसार जख्मी हो चुके थे और गिरिया भी कर रहा था, फना फिल्ला था, अली अली कर रहा था। उसने फौरन झोली में कलंदर के पाँव के नीचे जितने कंकर आए थे उन्हें झोली में भरना शुरू कर दिया। इधर कलंदर कबाब जो है वो पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया। करीब आया तो आके कहता है, ढोल जी ये क्या पत्थर झोली में भर रहा है, इन पत्थरों का तुझे क्या फायदा है? तो जो मेरे तरह दोस्तों, इन पत्थरों का तुझे क्या फायदा है? इस पर तो कलंदर के कदम आए हैं, उनका खून जमा हुआ है, पत्थर तुझे क्या फायदा देंगे? जुमला सुनना मारो तो मैं सलामत रखे। खुदा की कसम, ढोल जी ने कहा, आप भी सच कहते हैं, ये नुकीले पत्थर है, छोटे छोटे कंकर है, लेकिन देखिए तो सही, जब तक जमीन पर थे ये कंकर थे, जब कलंदर के कदम आया है कोई हीरा बन गया है, जो हीरे जवाहरात में बदल गए। 2-4 मिनट बस मैं तमाम कर। दुनिया अशिया सुनने से कहते हैं पंचम क्या देते हैं, तकदीर कैसे बदलेंगे? खुदा की कसम, सज्जाद हाथ धो दे तो लालो याकूत बने। हाथों का धोन, सिर्फ हाथों का धोन है, क्या देते हैं? और इश्क में खून बहाया, शरीयत और है, इश्क और है। शरीयत में पाबंदियां हैं, इश्क में ट्रैक्टर आता है। शरीयत कहती है जान बचाओ, इश्क कहता है हुसैन की तरह जान लुटाओ। शरीयत कहती है तकलीफ ना लो, इश्क कहता है यूसुफ को देख के उंगलियां भी काट लो। शरीयत कहती है जान बचाओ और इश्क कहता है अली अली करते हुए नीसन की तरह तू भी चल जा। खुदा की कसम, ढोल जी ने और जैसा जुमला कहा, आज इश्क दोस्त हर साथ करूं नारवी रक्षम, कहे तरखार मी गलतम, कहे परखार मी रक्षम। मैं अली और औलादे अली के इश्क में रक्स करता हूँ, मैं धमार डालता हूँ, मुझे अली से मोहब्बत है, मुझे अली से मोहब्बत है। बस खुदा की कसम, ये कहकर कलंदर रवाना हुआ। रोजा मौला हुसैन पे पहुंचा, हुसैन ने कहा नजफ चला जा, नजफ से मौला अली ने कहा मदीना चला जा। सारी हिस्ट्री कैसे क्रॉस करूं? जब मदीना आया हुक्म मिला रजा के रोजे पे चला जा, रजा के रोजे पर आया, फिर हुक्म मिला मदीना जा। मदीना में सैयद जलालुद्दीन सुल्तान शरीफ में है, बहुत बड़ी हस्ती है। 2 मिनट बाद खत्म करूं, इनकी मुलाकात कलंदर से हो गई। जलालुद्दीन रोजा नबी पर आंखों से झाड़ू देते थे, कलंदर बीबी ज़हरा की शरीफ पर कलंदरी बीबी ने अदा की है। सलमान मोहम्मदी था वक्त का कलंदर, जहाँ तक जुल्फे थी और खुदा की कसम गुस्ल करते थे ना, जहाँ तक मांग दरमियान से निकल आती, कंगी करते तो लाल और याकूत गिरते थे, जुल्फों से लाल और याकूत गिरते थे दोस्तों। अब मैं क्या कहूँ, बुहारी कहते थे बीबी ने कहा जा हमने तुझे कलंदरी अदा कर दी, तुझे फकर अदा कर दिया। फकर गौस कुतुब अबदाल, टाइम ही नहीं है, गौस कुतुब अबदाल और कलंदर क्या होता है। बाकी एक जुमला और तुम्हें दुआ लूं, खुदा की कसम वहाँ से आ गए सीधे मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियान जो दरिया चुनाव बहता है, ये मुल्तान के नशेब में बहता था, ये हिस्ट्री है। रोज़ों में आया, जुम्मातुल मुबारक था, अफ्तारी का वक्त हुआ, आखिरी जुमला और मैंने दुआ नहीं आता। मरीजों ने कहा सरकार अफ्तारी करीब है, तो गंतम ली मुल्तान शहर की गली में एक औरत चक्की पे आटा पीस रही थी। कलंदर ने दस्तक दी, उसने कहा आ जाओ। सरकार ने इस तरह थैला आगे किया गंदम का, उसने सर से पांव तक कलंदर को देखा, बस इशारा करूंगा, वो सुलेखा बनी, कलंदर को यूसुफ तस्वर किया। छठे इमाम का फरमान है औरतों में सूरा यूसुफ की मुकम्मल तफसीर ना की जाए, इसलिए मैं ये छठे इमाम का फरमान, औरतों में सूरा यूसुफ पढ़ना मना फरमाया इमाम ने। इसमें कुछ राज है, कुरान में जानता हूँ, वो भी इमाम ने बताया, लेकिन मैं बता नहीं सकता। बहरहाल इशारा मैंने किया है। उसने कहा बस
हमें खुश कर। कलंदर का नाम, हम अल्लाह के वली हैं। उसने कहा इल्ज़ाम लगाऊंगी। कलंदर ने कहा इल्ज़ाम लगाना औरतों की पुरानी आदत है, तो लगा ले इल्ज़ाम। उसने चोरी की सदा बुलंद की। लोग इकट्ठे हो गए, इमदाद भाई इकट्ठे हुए। कलंदर से कहा तू तो चोर है, काजी के पास जाना पड़ेगा। काजी के पास ले गए। 40,000 का मजमा इकट्ठा हो गया। कलंदर काजी के पास गया। काजी ने घर से पागल देखा, देख के कहता मुझे चोर नहीं लगता, मुहावते शरीयत लगता है। चोर नहीं है, कहता मुझे तो मुहावते शरीयत लगता है। उसने कहा काजी ने, लेकिन मैं मजबूर हूँ सरकार, अपना गवाह पेश कीजिए। कलंदर ने जुल्फों को झटका दिया, हमसे गवाह तलब करता है। उसने कहा गवाह देने पड़ेंगे क्योंकि मैं मजबूर हूँ। कहा मेरी सुन्नत की गवाही इसका 4 माह का बच्चा देगा। वो काजी हैरान हो गया, 4 माह के बच्चे को जानता है। फरमाया बच्चा जो है इसके बाप की गोद में है। इसका बाप मोहल्ले की तीसरी गली में चौथी दुकान पे बैठा तरबूज खा रहा है। वहाँ पे तलाश किया गया, बड़ी तवज्जो तरबूज खा रहा था। बच्चे को लेके आए। कलंदर ने बच्चे की तरफ देख के कहा दे मेरी समझ की गवाही। बच्चा 4 माह का था, मुस्कुरा के कहता है मेरी माँ झूठी है, कलंदर सच्चा है। शेर मुतलक है, इससे आगे तो अभी जश्न शुरू होना था भाई। बोदले को कैसे उठाया और ये सारी हिस्ट्री। बोदला कौन सा सैयद है, तालब में जाते हो जाके? मैं भी गया हूँ काज़मी। अगर कोई आपसे कहे हिंदुओं की रस्म है, वो भी पहले बजाते, जवाब क्या दोगे? ये सारे सवाल हैं, वक्त नहीं है। शेर सुने और दुआ। कलंदर कहता खैर हैदर अगर हमीदानी काबर अस्त यहूदी व नुसरानी। इस शेर की फारसी में हदीस भी मेरे पास मौजूद है। इमाम तो बिलाए शेख सदूक की किताब मुतरजम रियाज हुसैन जाफरी, ठोक कर रियाज पे एक नंबर ले लेना, सर पे अमामा बांधा है। तर्जमा उन्होंने किया है अलहम्द मार्केट में दूसरे फ्लोर पे चौथी दुकान बाएं तरफ है, जब चाहो यहाँ से मार्केट में उतारो। हदीस की किताब में मेरे पास मौजूद है। कलंदर कहता अली अली गैर